Assalamu students, I hope you're all doing fine. This is Inya here with another video from STEM International History Book 7 chapter number 5 का end exercise हम start करने जा रहे हैं. Same pattern as that of the previous chapters. So I hope that this is going to be easy for you, especially if you have revised. जी तो in this particular video what we're going to do is कि हम exercise अपनी complete करने जा रहे हैं of chapter 5 और we're going to start with the MCQs. What is the time span of modern period in Europe? So we already know, we have already studied about it. It's 1450 till 1789. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि the Renaissance was a cultural and socio-political movement of the dash and dash centuries. We've studied about it. This is the 15th and 16th century. फिर the Enlightenment was an intellectual and cultural movement of the dash and dash centuries. ये भी याद होना चाहिए. This was 17th and 18th centuries. फिर जहाँ पे Renaissance ख़त्म हो रही है, you're seeing कि उससे की अगली century के अंदर Enlightenment start हो गया. फिर Napoleon became the first consul of France. Then Otto von Bismarck, 1815 till 1898, was the prime minister of United Germany, right? उसके बाद फिर आ जाते हैं the first industrial revolution began around 1760s. और फिर उसके बाद we have short questions. What is the modern period in Europe? Again, हमने शुरू में भी जब chapter पढ़ना start किया था तब हमने कहा था कि modern period in Europe is not just about right now. Modern period in Europe started that when कि जब जो है वो वहाँ पे cultural changes आ रहे थे, जब old regime जो है that culminated into French Revolution, ये वो वाला time period था और ये इटली से start हुआ था सारा कुछ. फिर उसके बाद what do you mean by the Renaissance? Renaissance में हम देखते हैं कि किस तरह से there are so many thinkers and so many artistic minds जो कि वहाँ पे the way the culture was being taken or considered, the way the socio-economic landscape was being taken and considered, उस सारे को change कर देते हैं और एक बिल्कुल नया जो है framework for people they lay down और that also goes against the status quo. Status quo होता है किसी भी जगह का persisting authority system. तो उस authority system को उन्होंने break किया और लोगों को empower किया और लोगों में जो है sense of coming up with their own alternative ways or structure or systems जो है उसको develop किया. So this was basically what was meant by the Renaissance. फिर उसके बाद हमारे पास आता है what is the difference between colonialism and imperialism? Colonialism is when there is a particular स्टेट जो कि किसी और जगह पे जाती है उसको काइंड ऑफ इन्वेट कर देती है, वहाँ पे जाके उसका कल्चरल शिफ्ट कर देती है, रिलीजन शिफ्ट कर देती है, सारे सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को रीफ्रेम करती है. और इंपीरियलिज्म इज़ अगैन अनदर टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म. वहाँ पे क्या होता है कि ये सारा कुछ ज़्यादा डायरेक्ट होता है, वहाँ पे किंग आके बैठ जाता है. कॉलोनियल जो एम्पायर्स होते थे वहाँ पे किंग आके बैठता नहीं था, किंग या क्वीन. वो किंग और क्वीन अपनी ही जगह पे होता है, उसके डेलीगेट्स जाके जो है वो उस एरिया को चला रहे होते थे. देन वी टॉक अबाउट व्हेन डिड रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस. Russian Revolution basically went in around 1917s में है और this was not a single revolution, this was basically two revolutions which took place back to back. फिर उसके बाद who was Adolf Hitler? Adolf Hitler is a personality that we see emerging in Germany, or he was a dictator. He was also who actually gave rise to the Nazi period in Germany. उसके बाद हम आ जाते हैं towards comprehensive answers और उसमें आ रहा है पहला analyze and describe with evidence some of the main events, people and changes covered in the modern period in Europe. Main events के अंदर हम 3 revolutions पढ़ चुके हैं, Russian Revolution पढ़ चुके हैं, French Revolution पढ़ चुके हैं. फिर उसके अलावा जो है वो हम जर्मनी के बारे में जो है वो भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे अपराइजिंग कैसे हुई है. ये 3 जो है वो हमें पता है कि मेन इवेंट्स हुए वहाँ पे. फिर उसके बाद लोगों की बात की हमने, नेपोलियन बोनापार्ट की बात की हमने, ओटो वॉन बिस्मार्क की बात की ना. इसके अलावा हमारे पास कौन सी पर्सनैलिटी थी? हमारे पास मिखाइल गोर्बाचोव की जो है वो पर्सनैलिटी थी. उसके अलावा हमारे पास एडोल्फ हिटलर है, विंस्टन चर्चिल है. दीज आर जस्ट अ फ्यू पर्सनैलिटीज जो कि उस टाइम पे थी. यू कैन ऑल्सो find out more personalities which going hand in hand with this particular time period. फिर उसके बाद जी हमारे पास changes जो इस टाइम पे आए थे वो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल चेंजेस मोस्टली जो है वो हमें नज़र आते हैं. कल्चरल शिफ्ट जो है वो हमें नज़र आता है. फिर प्रोटेस्टेंट्स का अलहदा से जो है इमर्ज होता हुआ हमें दिखाई देता है. सो इस तरह से जितने भी चेंजेस आपने जो है वो चैप्टर में एक्सप्लोर किए हैं उन सबको इन योर ओन वर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे आपने लिखना है. देन it describes some of the reasons behind the industrial revolution. Industrial revolution के पीछे रीज़न ये भी थी क्योंकि colonialism था, imperialism था, तो पूरी दुनिया से वेल्थ जो है वो एक जगह पे लाके इकट्ठी कर दी जा रही थी और उसके इकट्ठे हो जाने की वजह से जो है हम देखते हैं कि किस तरह there was this particular thing कि
वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, इंडस्ट्रीज सेट हो रही थी, मशीन्स जो हैं वो इमर्ज हो रही थी, और उसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो रीज़न यही था कि अब एक्सेस टू गुड या एक्सेस टू रॉ मटेरियल बढ़ चुका था। फिर उसके बाद एक्सप्लेन हाउ द स्टीम इंजन ड्रोव द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो इसी तरह से कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाना जो है वो आसान हो चुका था, राइट। तो स्टीम इंजन जो है वो जहाँ पे लोग जो हैं वो कैटल्स के ऊपर या फिर डोंकीज़ के ऊपर या फिर अपनी कार्ट्स और कैरावान्स में जो है वो चीज़ें लेके जा रहे थे, तो ऑफ कोर्स पैदल चीज़ को लेके जाना इज़ समथिंग एल्स, चाहे आप घोड़े पे ही क्यों ना सफ़र कर रहे हो। और स्टीम इंजन के ऊपर उसकी स्पीड के साथ जो कंपैरिजन नहीं हो सकता या कंपटीशन नहीं हो सकता था, तो स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है प्रोसेसेस भी ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो गए, और जगह जगह जो है वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द कंट्रीज़ दैट गेन्ड ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स बाय अडैप्टिंग टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उसमें भी हमने नाम पढ़े हैं बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्दर्न फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। ये जो हैं 5 ऐसी आपकी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो गेन किया था। एंड यप, दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ आवर लास्ट चैप्टर, चैप्टर 5। तो बच्चों एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं हम। आई वेरी मच होप कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से इसके ऊपर अपनी ओपिनियन भी डेवलप करेंगे। इट्स नॉट वेरी मच नेसेसरी कि जो आपने पढ़ा है आपकी ओपिनियन वही हो, बल्कि आप अदरवाइज सोर्सेज को देखें और उससे भी अपनी ओपिनियन को बेहतर तरीके से जो है वो डिवाइस करें, ताकि जब कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आएँ तो उसमें आप अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में लिख सकें। सो या विद दैट, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।